Dear students, Assalamu alaikum. This is your first online lecture. Unfortunately, rotation of 15 days did not complete, and before that, the government has taken the step, precautionary step because of the pandemic of the COVID-19. So, this is your first online lecture. I have given you something basics in physical classes of first 15 days, but maybe strength or new admissions or few absentees might have been there. So I will start from again from the very scrap, no issue. And because you people are of the mixed bag, few students are from pre-engineering, few are from pre-medical, few are from pre-commerce, inter-commerce and computer. So other than pre-engineering, all have the lame excuses के मैथ्स उनकी नहीं पढ़ी हुई. तो उनके confusions को दूर करने के लिए, उनके excuses को दूर करने के लिए, I'll start from the very beginning, so nothing to worry about. So I started, if you remember in the class, okay, what is x, and I told you okay, you people mostly told me okay, x is a variable. Now this is what is the problem with you people कि जब आप x को एज अ वेरिएबल कंसीडर करते हो तो फिर मैथ्स आपकी उस लेवल की नहीं हो रही अंडरस्टैंडिंग. तो मैंने आपको कहा था कि x को एज अ कमोडिटी तस्वर करो कि x इज अ कमोडिटी. एज आई टोल्ड यू कि से टेबल, टेबल क्या है? एक कमोडिटी है, एक चीज है, किसी कमोडिटी का नाम है. इसी तरह से चेयर्स एक अलग कमोडिटी है, ग्लास, ओके, जग, लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कोई भी चीज, इवन आप कह रहे हो कि एग, ओके, रुपीज, जिसे हम नॉर्मली कहें कि करेंसी कोई भी, ओके. सो ऑल दीज आर द कमोडिटीज. सो बजाय इसके कि हम लोग लॉन्गर नेम्स लिखें, कि हम पूरे लिखें कि 2 टेबल्स, ठीक है, या 5 चेयर्स, हमेशा इस तरह से, तो हम जनरली कह रहे हैं कि हमने उसकी जगह रिप्लेस कर दिया एक वेरिएबल से, एक कैरेक्टर से, दैट इज एक्स. अब ये एक्स है, वाई है, कुछ भी हो सकता है. सो एक्स इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स योर एनी कमोडिटी. अगर इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी, आपकी मैथ्स बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी एज यू पीपल आर डूइंग इन नॉर्मल डे लाइव्स. एक इलिटरेट पर्सन even can make calculations because his interest or her interest is in that particular field. As I have given you the example कि एक लेबर है, एक सब्जी फरोश है, एक फार्मर है. उन लोगों को कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन एक फार्मर से भी अगर आप लोग ज़मीन के हिसाब से उसकी पूछेंगे या एक सब्जी फरोश से पूछेंगे तो वो कैलकुलेशंस आपसे ज़्यादा तेज़ कर रहा है, बिकॉज इट इज़ देयर इंटरेस्ट एंड इट इज़ रिलेटेड टू देयर फील्ड. तो आप एक्स को एज अ कमोडिटी लें तो आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द things which I have already given you in the class, तो थोड़ी बहुत यहाँ रिपीटेशन हो जाएगी, so sorry for that. So जैसे आप लोग सपोज के टेबल, 3 tables, 4 chairs, you cannot add or subtract them because the commodities are different. Similarly, if x is there or y is there, so x and y are entirely different commodities. X and y are entirely different commodities, so you cannot perform the normal arithmetical operations or the plus minus, addition, subtraction, multiplication, division. Similarly, जब आप common day life के अंदर similar, अगर हम 3 tables plus 4 chairs करें तो आप नहीं कर सकते.
अगर हम इनको माइनस करें तो भी आप नहीं कर सकते. Why? Because the commodities are different. If the commodities are same, you can perform the arithmetical operations onto it. So same it is true for these characters. These characters are nothing but they are the commodities. So furthermore, I told you that 5x raised power 6. I told you that this is your coefficient. Okay, this is coefficient. This is your base, and this is your power, or we say exponent. Okay. Now you need to identify the number written before any character is known as coefficient. The number written over character, that is your power, and the character itself is base. तो इन चीज़ों तीनों को आप लोग आइडेंटिफाई कर लें कि कोएफिशिएंट क्या है, बेस क्या है, पावर या एक्सपोनेंट क्या है, तो पूरी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी, अगर हम लोग x और x क्यूब्ड लिख रहे हैं, इफ वी आर राइटिंग इवन x एंड x क्यूब, तो कैरेक्टर तो वही है बट देयर पावर्स आर डिफरेंट. जब पावर्स डिफरेंट हो गए तो x क्यूब से अलग कमोडिटी हो गई. ये एक अलग कमोडिटी है, ये एक अलग कमोडिटी है, ये चीज अलग हो जाएगी, ये चीज अलग हो जाएगी. तो इसलिए डोंट मिक्स द थिंग्स. इन चीजों को सिर्फ आप लोग माइंड कर लें, जहन नशीन कर लें, देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. Nothing to worry about. So I'm starting with the basic rules which I have already given you in the class, जो फिजिकल क्लास थी, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ी बहुत मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो देर से एडमिशन हुए हैं या जो एब्सेंट थे या जिनको कुछ इश्यूज अभी भी हैं, तो उनके लिए मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ. सो जस्ट होल्ड ऑन और देखें कि आगे के रूल्स क्या कहते हैं. सो हियर इज नंबर 1 कि when similar bases are multiplied, when similar bases x or x bases are same, they are multiplying. When similar bases are multiplied, then their exponents or powers will be added. So this will become equal to x raised power 5 plus 7. This will become equal to x raised power 12. X raised power 12. So whenever similar bases are multiplying, then powers will be added. This was your rule number 1. Number 2, I have given you this also, कि y raised power 9 over y raised power 6. In this case, when similar bases are in the division form, कि one is to be divided with the other, in that case always smaller exponent will be subtracted from the larger exponent. So the actual procedure is actually this one, कि y raised power 9 into y raised power minus 6. Whenever base changes its position from numerator to denominator or vice versa, whenever base changes its position from numerator to denominator or denominator to numerator, तो हमेशा जो बेस का पावर है वो साइन में रिवर्स हो जाता है, रिवर्स इन साइन. सो यहाँ स्मॉलर एक्सपोनेंट 6 है, ये अपनी जगह चेंज कर रहा है, डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में लेकर जा रहे हैं. सो इस पावर इज 6, इट विल बिकम इक्वल टू -6. अगर ये माइनस में होता तो प्लस में, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा. सो बाय फर्स्ट रूल y रेज़ पावर 9 माइनस 6 इज इक्वल टू y क्यूब्ड हो जाएगा. या ऐसी इसको रिवर्स कर देंगे, हम छोटे डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट को लार्ज कर रहे हैं. सपोज x रेज़ पावर 5 ओवर x रेज़ पावर 7. इन दैट केस अगेन सेम, यहाँ 1 कोएफिशिएंट इसका एज इट इज रहेगा, स्मॉलर एक्सपोनेंट विल चेंज इट्स पोजीशन, 7 into x रेज़ पावर -5, सो 1 over x स्क्वायर आपका हो जाएगा. So this is rule number 2, कि when similar bases are in the division form, they will the smaller exponent will always be subtracted from the
लार्जर एक्सपोनेंट। थर्ड मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोज 3x⁴ प्लस 7x⁴ और 9y³ माइनस 3y³, तो क्या होगा? दिस इज नंबर 3, दोनों को मिलाकर मैं कह रहा हूं, दिस इज नंबर 3। नाउ इन दिस केस 2 कंडीशंस मस्ट बी देयर। ये 2 कंडीशंस मीट करनी चाहिए यहाँ। पहली कि बेसिस सेम हो और उनका एक्सपोनेंट वैल्यू भी सेम हो। पहला यह है कि उनका बेस सेम हो और एक्सपोनेंट वैल्यू भी सेम हो, तो ही हम इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। सो लुकिंग एट दिस वन, x बेस सेम है, पावर 4 भी सेम है, तो इनके कोएफिशिएंट 3 और 7 हम कहेंगे कि ये 10x⁴ हो जाएगा। ये वही चीज हो गई जो मैंने आपको कमोडिटी के हिसाब से समझाई थी कि अगर टेबल्स हैं तो टेबल्स टेबल के साथ ही ऐड होंगी, चेयर्स हैं तो चेयर्स के साथ ही ऐड होंगी आपकी। सिमिलरली कमिंग टू दिस वन, 9y³ माइनस 3y³, bases are same, their exponent value 3 is also same, so 9 minus 3 it will become equal to 6y³। so this is your rule number 3। rule number 3 क्या है कि if similar bases with same exponent value when they are separated with plus or minus sign, then their coefficients will be added or subtracted accordingly। जैसे भी हो उसी हिसाब से हमें करना है। So these were the 3 fundamental rules कि जिसके ऊपर मैंने आपको कहा है कि पूरी मैथ्स आपकी एग्जिस्ट कर रही है। ये 3 पिलर समझ लें आप। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको आगे कोई तकलीफ नहीं होगी। नो एनी इश्यू, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि कमोडिटी सेम है या नहीं है। सेम है तो ये रूल्स आपके सीधे सीधे पड़े हुए हैं, उसी हिसाब से आप अपने सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते जाएंगे। होप के दीज 3 विल बी क्लियर, लेकिन अगर नहीं भी तो वंस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग बिकॉज फिजिकल क्लास के अंदर आप लोग हर स्टेप के ऊपर हर जगह पर आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो, या मैं वहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मजबूर करूँ कि क्वेश्चंस पूछें। यहाँ क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूँ वंस अगेन। नंबर 1 हमें कह रहा है कि when similar bases are multiplied, this dot is multiplication, their exponents or powers will be added. When similar bases are in the division form, their smaller exponent will be subtracted from the larger exponent। वो हमने किया। इसी तरह से अगर ये डिनोमिनेटर में नीचे वाले में आपकी बड़ी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल रिमेन सेम। हमेशा माइनॉरिटी मेजॉरिटी की तरफ जाएगी, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू की तरफ जाएगी। थर्ड वन इज दिस वन के हम लोग कह रहे हैं कि इफ सिमिलर बेसिस, ये बेसिस सेम है विथ सेम एक्सपोनेंट वैल्यू, जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो उनके कोएफिशिएंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। So 3x⁴ plus 7x⁴ will become equal to 10⁻⁴। इसी तरह से 9y³ minus 3y³, bases are same, their exponent values are also same, so 9y³ minus 3y³ is equal to 6y³। so these are your 3 pillars or 3 basic rules you have to follow. Hope they will be clear to you. Okay baba. Now, if you remember, in the last physical lecture, I gave you 2-3 questions. One of them was this one, कि why we use brackets. Unfortunately, the rotation से पहले ही आपका online classes के ऊपर आ गए हम लोग, तो physically आप लोग आ नहीं पाए, वरना इसके ऊपर discussion होता आप लोगों से क्लास के अंदर। बहरहाल ठीक है, no issue, we have to continue। तो मोस्टली जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट इंस्टेंस में जो स्टूडेंट्स का रिप्लाई आता है कि ब्रैकेट्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि सेपरेशन के लिए, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है कि हम सेपरेट करने के लिए। मे बी उनका जो वर्ड सेपरेट है किसी सेंस में उनके हिसाब से ठीक हो, लेकिन जो नॉर्मली वर्ड सेपरेट की मीनिंग है वो कुछ इसको जस्टिफाई नहीं कर रही।
सो आई वोंट से कि जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि सेपरेट करना तो वो कोई गलत है, नो, लेकिन जो प्रॉपर वर्ड है सेपरेट का वो यहाँ सूट नहीं करता। सो बहरहाल जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, आई एम जस्ट गिविंग यू के ब्रैकेट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ब्रैकेट वी आर यूजिंग टू कंबाइन द डिफरेंट थिंग्स एंड मेक देम वन। हम ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको मिलाकर कहते हैं कि ये एक यूनिट हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोगों ने 6x³ - 3y² रखा ब्रैकेट के अंदर ओवर पावर 5 भी दे दिया सपोज, तो ये ब्रैकेट कंप्लीटली बिकम्स वन यूनिट, यानी ये एक चीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी मैं मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों को आपके हिसाब से देता हूं कि व्हेन यू आर इन द फिजिकल क्लासेस, आप लोग क्लास के अंदर बैठे थे सब के सब, ये जो दीवारें हैं इनको आप समझें कि ये आपकी ब्रैकेट्स थी, यानी आपको इनक्लोज किया गया एक जगह पर, तो आप सब वहां पर इंडिविजुअल हो, चाहे वो 100 हो, चाहे 150 हो, चाहे 50 हो, लेकिन बाहर से देखने वाला क्या कहेगा कि ये पार्ट 1 की क्लास है, यानी एक चीज है, यानी आप सबको मिलाकर ये कहा जा रहा है कि आप एक क्लास हो। सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रैकेट, कि ये ब्रैकेट्स आपकी दीवारें हैं, ये आप लोग इंडिविजुअली बैठे हो, आप जितने भी हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर कितने भी टर्म्स हो, लेकिन ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट यही है कि ये ज्वाइन करता है और इसको हम एज अ वन यूनिट लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम आ जाएं कि यहाँ कोएफिशिएंट क्या है हमारा, यहाँ बेस क्या है हमारा, और यहाँ एक्सपोनेंट क्या है हमारा, क्योंकि हम यहाँ ब्रैकेट्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ ब्रैकेट एज अ होल है, तो कोएफिशिएंट इस ब्रैकेट का अनस्पेसिफाइड है, यानी वो 1 होगा आपका। आई टोल्ड यू इन द क्लास के अनस्पेसिफाइड नंबर, जो नंबर आप स्पेसिफाई नहीं करते वो 1 होता है। इस पूरे का अगर हम आ जाएं तो बेस, तो मैंने कहा था कि जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है वो तो हो गया, एक्सपोनेंट तो वो तो क्लियर हो गई 5, और ये जो पूरी ब्रैकेट है आपकी 6x³ - 3y², ये आपका बेस कहलाएगा। ये है इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट। अगर इंडिविजुअली अगर हम जाएं तो फिर इसका बेस, इसका कोएफिशिएंट, इसका पावर अलग होगा 6x³ का, इसी तरह से 3y² का, उसको अब छोड़ दें अभी, लेकिन सिर्फ ब्रैकेट के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि व्हेन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को भी आप कोई अलग से ट्रीट मत करो, वो ब्रैकेट कंप्लीटली एक चीज है आपकी, वो भी यही चीज कर रही है जो नॉर्मली आप लोग करते आ रहे हो। तो जितने भी रूल्स मैंने बताए आपको, वो सब के सब ब्रैकेट्स के ऊपर भी एज इट इज इंप्लीमेंट होंगे। यहाँ ब्रैकेट्स को डिस्कस करने का मकसद यही है कि अगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो आप लोग परेशान हो जाते हो, तो अगर ब्रैकेट्स आ जाएं और उनके ऊपर ऑपरेशंस करने हैं तो वो कैसे करेंगे, वो भी एज इट इज होंगे, उनके अंदर कोई चेंज नहीं होगी। जो बेसिक 3 रूल्स बताए हैं वो तीनों रूल्स यहाँ अप्लाई होंगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन टू दिस वन, कि हम ब्रैकेट से वही रूल्स दोबारा से डिस्कस करते हैं कि ब्रैकेट्स लाकर। लुक एट दिस वन कि x - y³ into x - y पावर 4 रेस पावर 4, ब्रैकेट सेम आइटम्स हैं, ब्रैकेट सेम है, दे आर मल्टीप्लाइंग, यानी ये भी कमोडिटी सेम है, ये भी कमोडिटी सेम है। अब हमने थोड़ा ब्रैकेट के अंदर रख दिया, यानी वहां ब्रैकेट में भले वही चीज है आपकी, ठीक, तो सिमिलर ब्रैकेट्स आर देयर, यानी बेसिस सेम है। इन दैट केस क्या होगा कि मल्टीप्लीकेशन में सिमिलर बेसिस, देयर पावर्स विल बी एडेड, सो 3 + 4 वही x - y रेज पावर 7 हो जाएगा। या डिवीजन के अंदर अगर हम आ जाएं कि ब्रैकेट के अंदर 3x - y रेज पावर 5, ब्रैकेट के अंदर डिवाइडर 3x - y², ये दो बेसिस सेम हैं, ये डिवीजन फॉर्म में है, तो सिमिलर एक्सपोनेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर एक्सपोनेंट, सो 3x - y 5 - 2 it will be cube. Say like this one, 7 into bracket x² - 3y plus 4 into bracket x² - 3y. Brackets are same again, यानी bases same है, इनका exponent value भी same है, तो 7 + 4 11 x² - 3y होगा।
So there is no change in the rules, whether individual character is there or the whole bracket is there. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल्स रिमेन्स अनचेंज। आप लोगों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये सिमिलर चीज है कि नहीं है, सेम कमोडिटी है कि नहीं है। ये सेम है तो बात खत्म हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। होप दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। ओके, नाउ आई हैव रिटन द 4 different things because most of the students or the past experience or the when the mathematics is to be started or the algebra, most of the students cry के प्लस माइनस का झमेला हो रहा है, प्लस माइनस थोड़ा चेंज हो रहा है, तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पूरा आंसर गलत हो जाता है। सो दिस इज हेयर वेयर योर प्रॉब्लम लाइज। ये 4 चीज़ें मैंने लिखी हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 2 हैं। 2 कैसे हैं कि यहाँ थोड़ा कंसंट्रेट करें। जिसके आगे साइन नहीं है बेंस पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यानी दोनों में सिमिलर साइन है। ठीक, सिमिलर साइन। और यहां अगर हम आ जाएं तो इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी अपोजिट साइंस हैं। ठीक, सिमिलर साइंस हैं तो क्या करना है, अपोजिट साइंस हैं तो हमें क्या करना है। तो पहले हम आ जाते हैं सिमिलर साइंस की तरफ। इफ सिमिलर साइंस आर देयर एंड रूल नंबर 3 इज क्वालिफाइंग। रूल नंबर 3 क्या था कि बेसिस एंड देयर एक्सपोनेंट वैल्यूज आर सेम, देन देयर कोएफिशिएंट्स विल बी एडेड। तो सिमिलर साइन के अंदर आपको करना क्या है कि 7 + 3 10 क्यूब। प्लस के अंदर तो किसी को कोई इश्यू ही नहीं है। हमेशा आप लोगों का इश्यू, आप लोगों के प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं जब नेगेटिव साइन आती है, माइनस साइन। तो यहां पर -8y² -4y², दोनों की साइन सेम है। इस केस में भी आपको करना क्या है कि 8 + 4 को ऐड करना है। 8 + 4 क्या हो जाएगा, 12। नॉर्मली क्या है कि आप लोगों के जहनों के अंदर नीचे से बैठा हुआ है कि माइनस का मकसद है सब्ट्रैक्ट करना। ये कॉन्सेप्ट उस वक्त तो टीचर्स ने दिया था, वो सही था जब आपने इनिशियल में प्लस माइनस करना सीखा था, लेकिन वही कॉन्सेप्ट आप ऊपर लेकर आ गए हो, तो जिसकी वजह से आपकी कन्फ्यूजन्स बढ़ रही हैं। तो यहाँ ये कन्फ्यूजन्स अपना हटा दें कि माइनस का मकसद हमेशा कोई सब्ट्रैक्शन होता है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि हम नंबर शो कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव है। इसको मैं आगे और क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन पहले आ जाएं कि सिमिलर साइन में हम क्या कर रहे हैं कि अगर दोनों की पॉजिटिव साइन है तो भी हम कोएफिशिएंट्स ऐड कर रहे हैं, दोनों की नेगेटिव साइन है तो भी हम कोएफिशिएंट्स ऐड कर रहे हैं। तो 7 + 3 10x³। इस आंसर को हमने साइन कौन सी दी, जो दोनों टर्म्स की थी, पॉजिटिव थी, इसलिए ये भी पॉजिटिव रहा। यहाँ भी दोनों टर्म्स की साइन नेगेटिव है तो 8 + 4 को हमने ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 12। लेकिन इस 12y² को साइन कौन सी देनी है, जो टर्म्स की साइन है, यानी ये दोनों में माइनस है तो ये माइनस ही होगा। इसको मैं एक और एंगल से आप लोगों को समझा रहा हूं कि सपोज के ये आपका ग्रुप ए और ये ग्रुप बी है। ठीक, अब अगर हम कहें कि ग्रुप ए को हम प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ग्रुप बी को हम माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल, तो अगर हम कहें कि ग्रुप ए में हमारे पास 7 मेंबर्स पहले थे, 3 नए मेंबर आ गए। ठीक, तो टोटल मेंबर्स ग्रुप ए में कितने हुए, 10। ग्रुप ए में 10, ए को हम किससे, यानी प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्लस के 10 हो गए। इसी तरह से अगर हम आ जाएं कि बी ग्रुप में पहले हमारे पास 8 मेंबर्स थे, अब 4 और मेंबर ग्रुप बी में आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ग्रुप बी आर 8 + 4 12। लेकिन ये 12 किसमें, बी ग्रुप में, और बी को हम नेगेटिव। तो दिस इज, यू कैन से, ये प्लस माइनस और कुछ भी नहीं है, ये प्लस माइनस सिंपली आप लोग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो जब भी 2 सिमिलर साइंस हो तो हमेशा कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे और उनके आंसर को जो साइन मिलेगी, वो जो टर्म्स के साथ साइन है वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगी उस साइन के अंदर। तो ये हो गया सिमिलर साइंस का रूल। इसी तरह से अगर हम आ जाएं कि अगर टर्म्स में अपोजिट साइन है, लाइक
ओवर हेयर, इन दोनों में एक प्लस का है दूसरा माइनस का है यहाँ। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, वही आप लोग सिंपल से सोचें कि 6 - 2, ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस होगी, लेकिन गड़बड़ हो जाती है यहाँ के ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो हम कैसे इनको छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करें। सो फॉरगेट, मैंने कहा कि ये आप भूल जाओ कि ये माइनस का मकसद कोई सब्ट्रैक्शन है। सिंपली ये समझें कि ये ग्रुप्स हैं, ये डिफरेंट डायरेक्शन है, प्लस पीछे की तरफ या आगे की तरफ है और माइनस पीछे की तरफ है, या प्लस ऊपर की तरफ है और माइनस नीचे की तरफ है। ये डायरेक्शन बता रहा है और कुछ नहीं आपको, या ये ग्रुप्स आपको बता रहा है। सो अगर हम कहें कि बाबा ग्रुप ए और ये ग्रुप बी, वही हम पॉजिटिव और नेगेटिव वही हम कहें कि ग्रुप ए में हमारे पास 6 लोग थे, ग्रुप बी में हमारे पास 2 मेंबर हैं, तो किस ग्रुप में कितने मेंबर ज्यादा हैं? अब पहली तो सीधी बात, किस ग्रुप में मेंबर ज्यादा हैं? ए में ग्रुप मेंबर्स की तादाद ज्यादा है। कितने? 6 में से 2 माइनस करोगे, आप क्या कहोगे कि मैं यहां लिख रहा हूं इसको कि ये 4 मेंबर ज्यादा हैं। किस ग्रुप में? आप कहोगे कि ए ग्रुप में। तो ए को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? प्लस से। तो यहां भी देखें कि 6 - 2 4 क्यों? क्योंकि ग्रुप ए प्लस के हैं। मैं इसको और एंगल से भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन पहले इस तरह से आ जाए। इसी तरह से हमारे हैं कि ग्रुप ए में 3 स्टूडेंट्स थे, 3 मेंबर्स थे, ग्रुप बी में 8 मेंबर्स हैं। अब इसको हटा दें, इन 3 और 8 को कंसंट्रेट करें। इस 3 और 8 के हिसाब से अगर हम देखें और पूछा जाए वही सवाल कि यहाँ पर किस ग्रुप में कितने ज़्यादा हैं, तो 8 में से 3 माइनस किया तो 5। किस ग्रुप में ज़्यादा हैं? बी में। बी को किससे हमने रिप्रेजेंट किया है? नेगेटिव से, यानी ये माइनस का। सिंपल इज दिस वन। अब अगर ग्रुप के हिसाब से क्लियर है तो भी ठीक, अगर नहीं तो रूल क्या कहता है, जो मैथमेटिकल रूल है, जो अलजेब्रिक रूल है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी अपोजिट साइंस ऑन टर्म्स के साथ, तो आपको करना क्या है कि हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू में से, छोटा कोएफिशिएंट स्मॉलर कोएफिशिएंट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर कोएफिशिएंट। तो 6 - 2 क्या होगा? 4 को साइन कौन सी मिलनी चाहिए? साइन हमेशा मिलेगी लार्जर टर्म की। 2 और 6 में से लार्जर कौन है? 6 की साइन क्या है? पॉजिटिव, तो आंसर को पॉजिटिव मिल गया। इसी तरह से यहाँ आ जाए, इसकी पॉजिटिव साइन, इसकी नेगेटिव, तो हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी में से माइनस होगी। यानी 8 में से 3 हमने माइनस किया तो 5 आया। 5 को साइन किसकी मिलनी है? इन दोनों में से जो टर्म बड़ा है, 3 और 8 में से 8 बड़ा है, 8 इज लार्जर, 8 की साइन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव होगा। दीज आर द सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब ये चाहे ब्रैकेट्स के साथ हो, चाहे किसी के भी साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। 3 मैंने पहले रूल्स बताए, 2 ये मैंने आपको एडिशनल प्लस माइनस के हिसाब से बताए हैं। सॉरी। सो इन 5 को आप लोग पल्ले बांध लें। द मैथमेटिक्स इज नो मोर डिफिकल्ट। ये फिक्स्ड रूल्स हैं, इससे हटकर कोई चीज नहीं होगी। आप लोगों को सिंपली 5 रूल्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है, नथिंग एल्स। मैं अपने लेक्चर को, इस पहले लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें रिपीट हैं, कुछ स्टूडेंट्स नए हैं, तो इनिशियली बम्बार्डमेंट में इतनी ज़्यादा नहीं करना चाह रहा। सिंपली यहाँ तक मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूँ। आप लोगों के जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, तो ये जब मैं यूट्यूब के ऊपर रख रहा हूँ तो आप लोग देख रहे हैं। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो मैंने आप लोगों को अपनी MS टीम्स के अंदर मेंबर किया हुआ है। वहाँ जब हम लाइव सेशन में आएंगे, आपके लेक्चर देखने के बाद हम डेट फिक्स करेंगे आप लोगों की कंसेंट से ही कि कब आप लोग मीटिंग पर आ सकते हो, या कोई टाइम कन्वीनियंट हो सबके लिए, मेजॉरिटी के लिए, वो हम टाइम फिक्स कर लेंगे और लाइव सेशन हम क्वेश्चन आंसर का वहाँ भी करेंगे। या आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाए हुए हैं, वहाँ पर किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्टी है,
तो वहाँ पर भी मैं हाजिर हूँ, मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। होप कि ये 5 रूल्स आप लोग पकड़ लें, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, इनको समझ लें, कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर कर लें, मुझसे पूछें, आपस में डिस्कस करें, एक दूसरे से प्रैक्टिस करें और उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। सो इस वीक के लिए ये मैंने लेक्चर रख दिया है, तब तक आप प्रैक्टिस भी करो और फिर लाइव सेशन का वेट करो कि जब भी आप लोग कहोगे मैं आ जाऊंगा MS टीम्स के ऊपर, वहाँ आपका लाइव सेशन क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। तब तक टेक केयर, इंशाल्लाह सी यू सून, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।